Hello everyone, how are you? I hope everything is fine. Okay, so today we are going to start the new topic, second one, polynomials. So, welcome in the session number one of polynomial. Before we start the session, let me tell you what exactly you have to complete till this time. First of all, number system topic, you have to complete all the exercises. Okay, second thing, whatever doubts you might face during the exercise, those doubts you are going to note it down and send those doubts to me so that I can make a separate video of your doubts. Okay, so that will be helpful for you. Honestly, each and every one is supposed to solve the exercise and give me the doubts. Is that okay? Anyway, we have to cover so many points, everything is written now on the board. So let's start as early as possible. Okay friends, now what exactly the polynomial is? My first question, polynomial क्या होता है? You must have heard about polynomial, है ना? Like monomial, binomial, trinomial, so many things you must have heard about. Exactly क्या होता है polynomial? Let us understand. Polynomial क्या होता है कि उसमें कुछ वेरिएबल हो, उसमें कुछ कोएफिशिएंट्स हो. ओके, अभी 4x स्क्वायर, इसमें x square is variable and then 4 is coefficient. Okay, so a constant coefficient we can call it as. So what exactly is this? This is nothing but polynomial. तो इसमें वेरिएबल हो जिसमें कोएफिशिएंट हो, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिनोमियल. नथिंग रिक्वायर्ड, ओनली यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज पॉलिनोमियल. दैट्स इट. So I'll write few polynomials here, like 4x polynomial, right? 3x square minus 7x plus 1 polynomial, x raised to 4 minus 7 polynomial, x raised to 99 minus x raised to 2 polynomial, right? It's not only in x, it can be in y as well. So we have 2y minus 3 polynomial, 7 y plus nothing or 1, okay, polynomial. Okay, y square, y cube, I'll take y cube minus 7 y square plus 3 polynomial. So all these are considered to be polynomial. So I hope you understood what is polynomial. Polynomial is an expression in which we have variable and coefficient together. We call it as polynomial. Still, I'm sure I'm not very clear about what is polynomial. Fine. But when you will understand what is not polynomial, then you will actually realize कि exactly polynomial क्या होता है. What is not polynomial? So as I know that all these things which are written here on the board are polynomial, let us know what is not polynomial. Then you will understand in a better manner. Try to understand like 1 upon x plus 1 upon x square minus 1. It's not a polynomial. Okay, I'll write here not and here yes. This is not a polynomial. Okay, why it is not a polynomial? This is nothing but x raised to minus 1 plus x raised to minus 2 minus 1. It's the same as this. Okay, you know this very well, laws of exponent. To change the sign, I have to shift or I have to change the position in the fraction. So डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया तो इसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है. So the power of variable is needed to be whole number. Supposed to be whole number. If it is whole number, then only we can call it as polynomial. Okay, so how is that power supposed to be whole number? So let us check about the polynomial. पावर कितना है, 1 है. यहाँ पे पावर कितना है, 2 1. यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपको पता है क्या, कांस्टेंट में भी वेरिएबल होता है, x रेज टू 0 होता है वो इनफैक्ट. ओके, रिमेंबर दैट. सो जब भी आप लोगों को ओनली कोएफिशिएंट और ओनली कांस्टेंट नंबर दिखेगा, डोंट कंसिडर इट इज जस्ट अ कांस्टेंट. इट हैज़ गॉट वेरिएबल एंड दैट पावर इज 0. ओके, समझ में आएगा. अरे क्या हो गया, क्लियर. So here is x raised to 4 whole number and 7 into nothing means x raised to 0, right? 99 whole number, 2 whole number, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 0, everything, it's all about whole number. Okay, power as whole number, right?
और यहाँ पे पावर क्या है देख लो, पावर -1 है, होल नंबर नहीं है, -2 है, होल नंबर नहीं है. We call this as not a polynomial. Okay, so what is not a polynomial? You understood that this is not a polynomial. Few more example, like maybe x square minus root x plus 7. अभी ये पॉलिनॉमियल है क्या, ये हमने पहला देख लिया, ये दूसरा देख लेते हैं. तो आप तो बोलोगे कि ये है, क्योंकि पावर ऑफ x इज 2 विच इज होल नंबर, 7 का पावर x रेज टू 0 हो जाएगा विच इज अगेन अ होल नंबर. लेकिन डू यू थिंक कि ये जो दिख रहा है बीच वाला टर्म, इट हैज़ गॉट अ होल नंबर पावर? तो पता नहीं पहले पावर क्या है उसका. एक्स रेज टू 2, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू 1/2 प्लस 7 इंटू एक्स रेज टू 0. तो व्हाट इज द पावर हियर, इट इज़ 1/2. तो एक का भी पावर अदर देन होल नंबर नहीं होना चाहिए, वी कॉल इट एज नॉट अ पॉलिनॉमियल देन. ओके, सो 1 पावर ऑफ एक्स इज नथिंग बट हाफ, which is not a whole number. It is not a polynomial. I hope it is clear, very very clear, which is polynomial and which is not a polynomial. So एक चेक करते हैं how much you understand. Okay, चेकिंग करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं. कुछ polynomial लिखता हूँ मैं, आपको मन में you have to understand कि वो polynomial है कि नहीं है, and then I will tell you, you will verify it so that your idea is clear. हम लोग कंसिडर करते हैं A B C D E F सम G सम H एंड I. ठीक है, I तक ले जाते हैं. एक्स रेज टू 7, ठीक है, एक्स रेज टू 1/2 माइनस एक्स रेज टू 1/3, ठीक है, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर. देन वी हैव x प्लस 1/x, ऐसे कुछ. तो then we take 1/2x square plus 1/3x minus 7/5. Okay, we'll go for root x plus cube root of x, 7 root 2 0. Okay, done. I'll change the pen and then we'll start working on it. Okay, the first one, is it a polynomial? Surely it is a polynomial because power is whole number. So yes, it is a polynomial. Second, you decide, polynomial or not a polynomial. Ready? It is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Because power is 1/2, right? Third, again you decide, polynomial, not polynomial. Yes, it is not a polynomial because this power is -1. Okay, 1/x is x raised to -1, right? So power is negative. It is not a polynomial. D, you decide. It is a polynomial. It is not a polynomial. अभी आप बताओ कैसे? I'll just explain here. Isn't it is x plus 1 upon whole divided by x. तो कैन राइट एज x अपॉन एक्स प्लस 1/x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं. x अपॉन एक्स इज 1 प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पावर. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. ओके, इट्स वेरी क्लियर. डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. सिंपल थिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओके, ई, लेट्स चेक विद दिस. ई का क्या करते हैं हम लोग, यू डिसाइड. इज इट पॉलिनॉमियल? यस, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल. अभी आप बताओगे कैसे. यू मे आस्क मी कि तो फ्रैक्शन है, आपने बोला था कि फ्रैक्शन का मतलब होता है इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, जैसे सी में है. लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट्स इट. कोएफिशिएंट, इट इज़ नो वेयर टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट. द डेफिनेशन नो वेयर टॉकिंग अबाउट द कोएफिशिएंट, इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो हमारे पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे कितना है, 2 है. यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 1 है. यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, x रेज टू 0 मतलब 0 है. सो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल. क्लियर. f देखते हैं. f क्वेश्चन क्या है कि ये तो क्लियर है, क्यूब रूट ऑफ है एंड रूट है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. वेरी क्लियर. फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा x रेज टू 1/2 प्लस x रेज टू 1/3. ये तो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बी क्वेश्चन ही है. ओके, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. जी देखते हैं. जी 7, इज 7 अ पॉलिनॉमियल? आप बोलोगे ये तो नंबर है ये पॉलिनॉमियल कहाँ से हो गया. एनीवे, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल.
Let me tell you why it is a polynomial. Because 7 is not written just as 7. 7 into x raised to 0 हो जाएगा ना, as we have discussed earlier. So 7 into x raised to 0, 0 is nothing but whole number. Yeah, whole number है. So it is a it is a polynomial. Okay, it is called as a constant polynomial. I'll explain you this one. This is called as a constant polynomial. Okay, how about root 2? You decide. It is a polynomial or it's not a polynomial? Yes, it is a polynomial. Okay, why so? Because again here I can write as x raised to 0. Root 2, I don't have anything, I don't have any definition or any rule for coefficient. Coefficient can be anything, there is no problem. I am talking only about power of the variable for the polynomial. So power of the variable is 0 here again. So it is a polynomial. It is a polynomial. 0? Yes, it is also a polynomial. Okay, why is polynomial? I can write 0 into x raised to anything, yeah, 1000. There is no problem. Because ultimately 0 into anything is going to be 0. तो इसका आंसर तो वैसे भी 0 आने वाला है. तो I can write 0 raised to anything. Okay, so it is called as a zero polynomial. Okay, zero polynomial. Interesting होता है zero polynomial, क्योंकि इसके x raised to कुछ भी ले सकते हैं हम लोग. ठीक है ना? Clear? Got the point? तो यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं and we'll discuss about the next one. So what I understood right now is कि what exactly is polynomial and what we call that it is not a polynomial. Okay? तो दो चीज़ें हमने देख ली, एक देख लिया polynomial and ये दूसरा देख लिया what is not a polynomial. अभी चेक करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या चीज़ है, ये तो आपको भी पता है. अभी यहाँ से हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं. नॉट अ पॉलिनोमियल के बारे में वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट. We are just going to think about polynomial. Okay, after this you will be never asked what is polynomial and what is not a polynomial. Okay, you will be always given a polynomial and you have to use it. That's it. Okay, so remember that. So I just told you कि polynomial क्या होता है. It's a very simple idea, and the definition also you understood that power should be whole number of the variable, not of the numbers. Okay, anyway, तो इसके बाद तो polynomial ही है, तो don't have to worry about it. फिर भी monomial क्या होती है, you know that very well. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट टर्म्स क्या होते हैं. ओके, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? इसमें 3 टर्म्स है. एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है. बेसिकली लेट मी टेल यू, टर्म्स आर बीन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. ओके, उसी को सिर्फ टर्म्स बोलते हैं. ओके, सो इन दिस पॉलिनोमियल इट इज़ बीन डिवाइडेड बाय 1 नेगेटिव साइन एंड 1 पॉजिटिव साइन. तो कितने टर्म्स में डिवाइड हो गया है वो? 1, 2 और 3. 3 terms are there. If it is 3 terms, then we call that polynomial as trinomial. Trinomial. 2 term होते हैं, we call it as binomial. जैसे कि 3x raised to 99 minus 7x. Okay, we are going to call it as binomial. Bio हो गया कि sorry, binomial. And monomial क्या हो जाएगा फिर? x raised to 1000, 100, 1000, whatever. और x raised to 7, 4x raised to 7 minus 4x raised to 7. What is it called as? Monomial. Okay, got the point. I think you have studied this in your previous years as well. But एक typical confusion रहता है कुछ questions के लिए. Like suppose imagine if I give you 4a into b into c, ऐसे एक question दे दिया. Now what do you think it is? Monomial, binomial के trinomial है? Let me tell you, it is what? It is monomial. Okay, it is mono. You will ask कि यहाँ पे तो 3-4 टर्म दिख रहे हैं, how can I consider it as monomial? लेकिन ये टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स नहीं है. टर्म्स मैंने बोला अभी भी क्या होता है? The terms are those which are separated by positive and negative sign, not by multiplication and division sign. So multiplication and division sign हो तो ये अलग टर्म नहीं होते, वो एक ही टर्म होती है. तो this is in fact 4abc. Let me tell you. It is just 4 ABC. So what we call it as monomial. Okay, so it's a simple idea, a very very simple idea. चलो anyway, तो I hope you understood. Mono means 1 term, bi means 2 terms, tri means 3 terms. That's it. You don't have to worry for it. अभी आप बोलोगे कि ट्राई के बाद अगर हो तो कितने टर्म्स हो, हम लोग उसको करेंगे, कंसिडर करेंगे, या फिर उसको व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज. तो ट्राई के बाद कोई नेम नहीं है. ओके, रिमेंबर वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल इट एज पॉलिनोमियल. तो नॉर्मली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है
कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये अलग होता है and पॉलिनोमियल अलग होता है. But let me tell you, polynomial is a common name used for everything. Common name. तो 3x is also a polynomial. 2x square minus 7 is also a polynomial. And x cube minus 7x square plus x minus 3 is also polynomial. ये तीनों के तीनों polynomial ही है. इनको बस स्पेशल नाम दिया गया है. What is it? What we call it as monomial. Here it is called as a binomial. एंड इसके लिए कोई नाम नहीं है, हम लोग उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. तो एवरीथिंग इज पॉलिनोमियल ओनली. ओके, क्लियर? बट लेट मी टेल यू, ये तो बस मैंने बेसिक आइडिया करके मैंने बताया, बिकॉज दिस इज नो वेयर इज गोइंग टू अफेक्ट योर टॉपिक. ये कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं आने वाला है. वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आफ्टर दिस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये तो टाइप हमने देखे अकॉर्डिंग टू टर्म, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टर्म के हिसाब से टाइप देखे. लेकिन आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन another different type, that is linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial in this year. Okay, we will be checking it. Okay, first of all, constant polynomial, zero polynomial तो आपको पता चल गया. 7 और नंबर सिर्फ हो, वेरिएबल नहीं हो तो we call it as constant polynomial. 0 सिर्फ हो तो we call it as zero polynomial. तो ये 7 is a constant polynomial, 1/2 is a constant polynomial, -3 is a constant polynomial, √2 or √3 is a constant polynomial. So all these are constant polynomial whose power will be x raised to 0. Okay, variable will be x raised to 0. जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होता है. जीरो पॉलिनोमियल, उसका पावर कैन बी एनीथिंग, x रेज टू एनीथिंग, 7, 3, 2, 1, जो भी हो, कुछ भी चल जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो जीरो पॉलिनोमियल हो गया. ओके, कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल यू अंडरस्टूड. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड डिग्री, देन आई विल टीच यू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होता है. डिग्री क्या होती है? वी हैव स्टडीड दिस इन योर प्रीवियस ग्रेड्स, दैट व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट which is the highest power in the expression. Highest power of the variable in the expression is called as a degree. Highest power of the variable in the expression. 7x square minus 3x plus 5. Degree बताओ. Highest power of the variable. 2. Simply 2. Right? 2x raised to 98 minus 7x raised to 93 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 7. डिग्री बताओ. 98. क्यों 98? हाइएस्ट पावर. सिंपल एज दैट, राइट? ओके, सो एक्स क्यूब माइनस 7x. डिग्री बताओ. 3. 100% 3. राइट. एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3. डिग्री कितनी होगी? अभी आप बोलोगे 1, क्योंकि यहाँ पे तो डिग्री 1 दिख रही है, राइट? नहीं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वट एवर डिग्री वी गेट, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? कुछ और लेते हैं, लाइक 4x माइनस 3. अभी डिग्री कितनी होगी? क्योंकि पावर तो दिख नहीं रहा है. पावर नहीं है मतलब इसका मतलब है वहाँ पे 1. तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1. ओके, एनीवे आई कैन गो फॉर 7. 7 की डिग्री कितनी होती है? आप बोलोगे ये पॉलिनोमियल किधर है? दिस इज अ पॉलिनोमियल, वी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री कितनी है? आपको पता ही है, ये होगा x रेज टू 0. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0. क्लियर? गेटिंग? अंडरस्टैंड? 0 की डिग्री कितनी होती है? 0 इज अ पॉलिनोमियल, है ना? 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल. तो एक्स रेज टू क्या लिख सकते हैं सो दैट आई गेट 0 अगेन द आंसर? एक्स रेज टू एनीथिंग आई कैन राइट. 5 आई कैन राइट, 57 आई कैन राइट, 577 आई कैन राइट, 5775 आई कैन राइट, एनीथिंग आई कैन राइट, एंड दैट कैन बी द डिग्री. तो लेट मी टेल यू, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉन डिफाइंड होती है. नॉन डिफाइंड. इट कैन बी एनीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम. 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है. ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल. ओके, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड. इट कैन बी एनीथिंग. आई होप इट इज क्लियर. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0. एंड 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड. तो डिग्री समझ में आ गया. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में आ गया. चलो अगेन देखते हैं. फर्स्ट वाले की डिग्री कितनी है? 2 है. सेकेंड वाले की डिग्री कितनी है? 98 है. थर्ड वाले की 3 है. फोर्थ वाले की, बिकॉज आई हैव टू what you have to do, I have to simplify, तो it is 2. यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 है तो it is 1. यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड. ओके,
सो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, 1, जैसे कि 1 डिग्री ये है, वी कॉल इट एज लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। जिस किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। जिसकी 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, यहां पे लेता हूं, क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 होती है, 3, ये रहा 3, वी कॉल इट एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। Okay, so simple approach, simple and very simple and easy. Degree 1 linear, degree 2 quadratic and degree 3 cubic polynomial. तो आप बोलोगे डिग्री 5 भी होता है क्या? होता है। डिग्री 4 भी होता है क्या? होता है। डिग्री 4 को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, डबल ऑफ क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वी डोंट कंसिडर दैट। क्यूबिक, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? दैट्स इट, दिस इज व्हाट द पॉलिनोमियल इज। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ऑलमोस्ट योर इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल इज डन। द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड अगेन कि क्यूबिक एंड लीनियर एंड क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो लीनियर के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक के क्वाड्रेटिक क्यूब्ड ए, नहीं कुछ तो गलती हो गई ना, एंड क्यूबिक के कुछ, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर इट। लीनियर, पावर शुड बी 1। देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पावर शुड बी 1। मेरा बेसिक आइडिया क्या है, पावर शुड बी 1। तो 4x लीनियर, 2x लीनियर, -x लीनियर, x + 3 लीनियर, 5x - 7 लीनियर, √2x + 3 √3 चलो लीनियर, ठीक है, -5/7x + 3/2 लीनियर। ओके, पावर देख लो बस भाई, और कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टर्म डिपेंड नहीं कर रहा है, टर्म मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, रिमेंबर दिस। एक्स स्क्वायर -7 क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 quadratic. Okay, number of term is not going to matter here, degree is going to matter. Okay, तो हम लोग और कुछ देखते हैं, जैसे कि 2x² - x quadratic, है ना, x + 2 × x quadratic। अभी आप बोलोगे तो लीनियर है, नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो। ओके, isn't it? It's quadratic. Anyway, x + 2 the whole square quadratic. एक्सपांड करके देख लो, इट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक, राइट। क्यूबिक, -x³ -x³ + 3, x³ - 2x + 3, x³ + 4x² - 2x + 5, राइट। क्यूबिक, x + 3 the whole cube, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x + 1 × x + 2 × x + 3। अभी आप बोलोगे इसको सॉल्व कौन करते पड़ेगा, करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो पता है, x × x × x तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आफ्टर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 3। तो ये हो जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x² + 1 × x + 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, गॉट द पॉइंट? तो आई होप योर आइडिया क्लियर फॉर दिस कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया, आई होप यू गॉट इट। इंटरेस्टिंग है ना? बट लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाय टेकिंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टूडेज सेशन। Okay, we are not going to do anything today, not solving nothing, only to understand the polynomial this today's session was taken. Okay, so आज आप रिलैक्स हो। रिलैक्स क्यों बोला है मैंने? रिलैक्स नहीं है, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, तो इसलिए आई एम गिविंग नो वर्क टुडे, ओनली इंट्रोडक्शन आई एम टेकिंग। ओके, अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एंड विल बी यूजिंग दिस वैल्यू मैनी टाइम इन द सॉल्यूशन।
in the questions after this. So value of polynomial you have to understand properly. तो अभी से हम लोग पॉलिनोमियल लिखने की एक प्रैक्टिस बनाते हैं. जैसे कि ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2. इस चीज़ को बोलते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना. ओके, पी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स. ओके, पी इज फॉर पॉलिनोमियल, ऐसे नहीं है. इट कैन बी रिटन एज क्यू ऑफ एक्स एज वेल और आर ऑफ वाई एज वेल, ऐसे भी लिखते हैं. बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं. ओके, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ऐसे पॉइंट को नाम नहीं देते क्या, ए बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी, है ना, ऐसे पॉइंट को नाम देते हैं ना, ए बी सी. सेम वे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को नाम दे रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट नेमिंग इट. तो पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, कभी कभी जी ऑफ जेड ऐसे भी होता है, या फिर एफ ऑफ एक्स ऐसे भी होता है. ठीक है, सो इट जस्ट नेम, नथिंग एल्स, जस्ट नेम. एक्स क्यू बिकॉज द वेरिएबल इज एक्स आफ्टर दैट, दैट्स व्हाई दैट एक्स इज देयर. ओके, let us take the value of x as equals to 2. So for 2, what is the value of polynomial? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, p of 2 is equals to, कुछ नहीं, बस x की जगह पे 2 पुट करना है. ओके, तो इट इज 4 minus 14 plus 2. I think it is minus 8, right? Minus 8 maybe. तो इस minus 8 को बोलते हैं value of polynomial. Clear? Got it? It's easy, not difficult. It's very very simple concept. ठीक है, क्लियर? चलो, एनीवे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस इन सेंस recap of the topic in terms of or with the questions. Okay, I'll write the questions, you have to answer it, and then I'll explain in this video itself, and you will complete it. Okay, if you are not getting it. Anyway, write a binomial of degree 100. एक पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ. अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 की डिग्री क्या होगी. ठीक है, क्वेश्चन थर्ड 7 एंड यहाँ पे यहीं पे लिख लेता हूँ, इन दोनों की डिग्री क्या होगी. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. राइट अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. चलो, कैन यू आंसर दिस? राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100. कुछ नहीं, दो बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म्स, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए एंड दो टर्म्स होने चाहिए. तो x रेज टू 100 कर दिया प्लस x, हो गया काम खत्म. यहाँ पे कुछ भी लिख लो, बस 100 से आगे नहीं जाना चाहिए. क्लियर? गॉट इट? तो ये हो गया मेरा बाइनोमियल एंड डिग्री 100. सो सिंपल, कुछ है नहीं. व्हाट इज डिग्री ऑफ 7 का डिग्री क्या होता है? 0 होता है ना, क्योंकि इट इज x रेज टू 0. और 0 का डिग्री क्या हो सकता है? एनीथिंग, एनी होल नंबर. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉट स्पेसिफिक और नॉट डिफाइंड. याद रहेगा? नेक्स्ट, राइट ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3. डिग्री 3 का मतलब क्या होता है? डिग्री 3 मतलब एक पावर, हाईएस्ट पावर शुड बी 3. तो पहले ही लिख लेता हूँ हाईएस्ट पावर 3, उसके बाद कम लिखना है x स्क्वायर प्लस x. हो गया ट्राइनोमियल. दैट्स इट, यू कैन राइट एनीथिंग. होप दिस इज क्लियर. ओके, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू देखेंगे पॉलिनोमियल की, एंड देन उसके बाद मैं कंक्लूजन कर देता हूँ आज की वीडियो का. तो इफ आई एम गिविंग यू p of x, I hope you know what is p of x. It's a polynomial name. p of x is equals to x square
plus 7x plus 12, and you have to find p of minus 3 and p of minus 4 आपको फाइंड करना है. चलो ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेता हूँ. चलो, तो सबसे पहले व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट पी ऑफ एक्स. क्या होता है पी ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. तो पी ऑफ माइनस 3, व्हाट इज गोइंग टू बी पी ऑफ माइनस 3? तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 12. सिंपल सी बात है. माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 21 प्लस 12 है ना, ये माइनस हो जाएगा ना. होप यू गॉट. तो 9 माइनस 21 माइनस 12 प्लस 12, आंसर क्या हो गया? 0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? इज गोइंग टू बी 0. यू कैन इवन सेम वे फाइंड पी ऑफ माइनस 4 एज वेल. ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. होप यू आर क्लियर विद दिस. अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स इट. सो लेट्स गो फॉर कंक्लूजन. सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. इन शॉर्ट, व्हाट इज नॉट पॉलिनोमियल? अगर वेरिएबल का पावर मतलब एक्स एंड वाई का पावर, वेरिएबल का पावर अगर इफ इट इज समथिंग अदर देन होल नंबर, फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, वी कॉल्ड एज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, नॉट अ पॉलिनोमियल. वेरिएबल को रूट, क्यूब रूट हो, नॉट अ पॉलिनोमियल. राइट. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? मोनोमियल इज 1 टर्म, बाइनोमियल इज 2 टर्म, ट्राइनोमियल इज 3 टर्म. टर्म का मतलब होता है समथिंग विच इज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन. लीनियर, डिग्री 1. लेकिन पहले डिग्री क्या होता है? डिग्री वही होता है जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हो. तो हाईएस्ट पावर 1 हो, वी कॉल्ड एज लीनियर. डिग्री 2 हो, वी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक. डिग्री 3 हो, वी कॉल्ड एज क्यूबिक. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री इज 0. 0 पॉलिनोमियल, डिग्री इज एनीथिंग. Right, and value of the polynomial, we just replace x by the value, we get the value of the polynomial. Okay, and that's it for today. Okay, but basically I want you all to start or complete the 6 exercises of number system today. Okay, till then, bye bye. See you tomorrow with more better understanding of the polynomial by actually solving it. Okay, till then, have a nice day, but complete the exercise at any cost. Okay, today I'm telling you, I should get all the doubts. Okay, all the doubts I should get. I am interested in solving the video on the doubt. Okay, so I want to do that, very much excited to do that. So check the complete exercise and send me the doubts so that I can quickly prepare the video. Bye bye, see you tomorrow.